Welcome again, ChemBio classes, and here we will discuss about qualitative analysis. Today we will discuss about carbon, hydrogen, and nitrogen detection. So let's start with the carbon and hydrogen. So in case of carbon and hydrogen, we use this technique here. This instrument attaches with like this, like this. So here in green color it is organic compound plus CuO, copper oxide. This organic compound having carbon and hydrogen. So here this is the orange colored. I'm showing differently so that you can differentiate easily. This is the copper sulfate anhydrous. Anhydrous means it has copper sulfate has lack of water molecules, and further here in this container there is lime water. And in starting, when we give heat to this tube, then CO2 and water may may arise and pass through this passage. Here with CuSO4, water molecules combines and CuSO4 becomes hydrous. And then we left over with the CO2. CO2 enters in lime water and lime water turns milky due to the presence of carbon dioxide. So here we detect carbon in the form of CO2 and hydrogen in the form of water. Now let's do the reactions governed with this technique. Carbon from organic compound reacts with the copper oxide. Firstly, gives CO2 and 2 moles of copper. Similarly, water hydrogen joins with the copper oxide to form water and copper. Here you get CO2 in the form of it's a carbon form, and hydrogen form, water. Then these CO2 and water passes through copper sulfate solution. Then copper sulfate anhydrous joins with the 5 moles of water to give copper sulfate 5H2O. This solution will be blue in color. After that, CaOH twice. This is the lime water. When lime water comes in contact with the CO2, then CaCO3 form plus water. CaCO3 calcium carbonate has white colored PPT, and this shows milky condition. So this technique have some limitations also. And then we will do modifications. Firstly, if if a compound contain sulfur also, sulfur during this process, then sulfur gets oxidizes to sulfur dioxide, and then this sulfur dioxide joins with joins lime water
and turn it to milky. Then we will get um, disturbance or confusion confusion by which lime water turns milky by CO2 or by SO2. So एक्चुअली होता क्या है, अगर सल्फ़र हो बाई चांस, मैंने आपको सिंपल क्या बोला कि यहाँ से आप स्टार्ट कीजिए कि हमने कार्बन और हाइड्रोजन को देखना है, ठीक है। अगर हम उनको डिटेक्ट कर रहे हैं, जैसे आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को कॉपर ऑक्साइड के साथ ट्रीट करोगे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होगा उसके वेपर्स, एंड जैसे ही वाटर के वेपर्स कॉपर सल्फेट के साथ में कांटेक्ट में आएंगे तो हाइड्रस हो जाएगा कॉपर सल्फेट, और ये सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा। और उसके बाद जब CO2 इधर चला जाएगा लाइम वाटर में तो ये मिल्की हो जाएगा। बट अगर बाय चांस उसके अंदर सल्फ़र भी प्रेजेंट हो, अगर सल्फ़र भी प्रेजेंट होगा तो आपको पता ही है सल्फ़र भी सल्फ़र का ऑक्साइड बना लेगा। कैसे बनाएगा, देखो सल्फ़र 2 मोल्स ऑफ कॉपर ऑक्साइड के साथ SO2, और जैसे कार्बन ने किया था वैसे ये कर लेगा। उसके बाद जैसे ही ये लाइम वाटर के कांटेक्ट में आएगा ये CaSO4 बना देगा, जो कि वाइट कलर के PPT होते हैं, ठीक है। तो अब हमें कन्फ्यूजन हो जाएगी कि ये सल्फ़र की वजह से है या कार्बन की वजह से, क्योंकि हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कई बार नहीं पता होता कि इसके अंदर क्या है, ठीक है। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मॉडिफिकेशन आई। क्या मॉडिफिकेशन आएगी कि हमने सबसे पहले जो गैसियस जो हमारा मिक्सचर आया है, ठीक है, गैसियस मिक्सचर, चाहे उसके अंदर CO2 हो, चाहे हमारी वाटर बना हो, चाहे हमारे पास SO2 हो, कुछ भी होगा, हमने इस सारे सॉल्यूशन को पास करना है किस में से, हमने इसको पास करना है K2Cr2O7 में से, ठीक है। एसिडिफाइड K2Cr2O7 में से पास करना है, ठीक है। अगर हम ये करते हैं तो ये क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब कर लेगा SO2 को, इफ़ प्रेजेंट। अगर ये क्या करेगा, ये SO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा, बट नॉट ये CO2 को वैसे ही रहने देगा और वाटर को भी वैसा ही रहने देगा। एंड देन आप क्या करोगे, आप कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में एनहाइड्रस सॉल्यूशन में अब डालोगे, तो अब क्या होगा, CuSO4 5 मोल्स ऑफ वाटर मिल जाएगा, ठीक है, 5 मोल्स ऑफ वाटर। एंड देन आप, और साथ में आपके पास CO2 तो पड़ी हुई है अभी भी। अब आप क्या करोगे, इसको स्लेक लाइम वाटर CaOH2 इसके साथ करोगे तो ये CaCO3 बना देगा, जो कि मिल्की कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ चुकी होगी, ठीक है। और ये एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, ये एब्जॉर्ब इसने किया, अगर एब्जॉर्ब कर लेता है तो ये कलर कुछ ऐसा हो जाएगा, ऑरेंज से ऑरेंज 2, ये पहले ऑरेंज कलर का होता है, ऑरेंज से ग्रीन में चेंज हो जाता है, तो कलर चेंज का आपको डिफरेंस नज़र आएगा, जिसे समझ आ जाएगा कि K2Cr2O7 का वर्क हुआ है और SO2 एब्जॉर्ब हो चुका है। चलो अब हमारी बात आती है नाइट्रोजन के ऊपर। तो नाइट्रोजन के लिए हमने सबसे पहला जो मेथड होता है वो होता है ड्राई हीटिंग टेस्ट। तो ड्राई हीटिंग टेस्ट के अंदर आप क्या करते हो, सिंपली ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया और नाइट्रोजन जिसके अंदर है ही है, विद नाइट्रोजन को जैसे ही आप बर्न करोगे और स्मेल करके देखोगे, स्मेल लाइक बर्निंग हेयर, ठीक है, जैसे कि बाल जल रहे हों, या फिर मैं कहूँ और बर्निंग फैदर, जैसे कि कोई फैदर जल रहा हो। तो ये जब ऐसे केस जिसके अंदर आपने स्मेल करके देखना है, तो स्मेलिंग पावर कई बार एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते कि वो ठीक है, हमने सही तरह से स्मेल किया है या नहीं, तो ये एक नॉट रैलिएबल प्रोसेस है। तो इससे हम एग्जैक्टली अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि नाइट्रोजन है
लेकिन हम एक टेस्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा हमें पता लग जाता है, ठीक है, लेकिन कंफर्म नहीं कर सकते। देन हम क्या करेंगे, सोडा लाइम टेस्ट करेंगे। सोडा लाइम टेस्ट कैसे करना है, आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड लेना है जिसके पास नाइट्रोजन है, आपने उसको सोडा लाइम के साथ रिएक्ट करना है। जैसे कि अगर मैं लूँ RCONH2, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें नाइट्रोजन है, ये अमाइन की फॉर्म में। मैंने NaOH और CaO, ये जो बेसिकली हमारे पास होता है ये होता है सोडा लाइम। तो बेसिकली सोडा लाइम के साथ जैसे ही हमने रिएक्ट किया तो आप देखिए RCOONA, ठीक है, RCOONA ये हमारे पास आ गया। प्लस साथ में क्या आएगा, अमोनिया जो हमारे पास बचा NH2 और ये NH3, और साथ में हमारे पास क्या आ गया, वाटर आ गया। वाटर भी निकल जाता है और अमोनिया भी उड़ जाएगा, दोनों ही उड़ जाएंगे। लेकिन इसकी हमें क्या आ जाएगी, अमोनिया की स्मेल भी आ जाएगी। बट सेम स्मेल को कभी हम अच्छे से नहीं कर सकते, कई बार नहीं भी समझ आता कि किसी को जल्दी आ जाती है स्मेल, किसी को नहीं आती, तो ये भी नॉट रिलायबल प्रोसेस होगा। ठीक है, आप ये देख लीजिए, दिस इज़ द सोडा लाइम टेस्ट एंड दिस इज़ द ड्राई हीटिंग टेस्ट। तो थर्ड हमारे पास जो होगा वो बहुत ही अच्छा सा मेथड है, लसाग्नेस लेसैग्नेस एक्सट्रैक्ट मेथड। तो लेसैग्नेस एक्सट्रैक्ट LE इसको बोला जाता है। तो जैसे कि हमने ये बहुत सारी चीज़ों के लिए LE बना के रख लेना होता है। जैसे आप प्रिपेयर करके रख लोगे, जिस कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक LE आपने प्रिपेयर करके रख लेना है, और वो थोड़ा थोड़ा LE आपने यूज़ करके डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स लगाने हैं और आपको कंफर्म होता रहता है। ठीक है, ये एली कैसे है, जैसे अगर आप किसी होटल में जा रहे हो तो होटल वाला क्या करता है, जो शेफ़ होता है वो शेफ़ एक ग्रेवी तैयार कर लेता है। ठीक है, अगर वो एक ग्रेवी तैयार कर लेता है, वो डिफरेंट डिफरेंट ए डिश के लिए, बी डिश के लिए, सी डिश के लिए बस उसके अंदर थोड़ा थोड़ा चेंजेस करता रहता है और डिफरेंट डिफरेंट डिशेस तैयार कर देता है। सेम आपने वही करना है, एली आपको लेना है ग्रेवी की जगह पर, उस एली के साथ आपने डिफरेंट डिफरेंट नाइट्रोजन का, हेलोजन का, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के, डिफरेंट एलिमेंट्स के टेस्ट करने हैं और आपको पता लग जाएगा कि वो उसके अंदर है या नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये मैं आपको रब कर देती हूँ। तो अगर हम सबसे पहले एली को कैसे प्रिपेयर कराना है वो पहले हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप क्या लोगे, एक फ्यूजन ट्यूब आती है, फ्यूजन ट्यूब आपको लैब में मिल जाएगी, फ्यूजन ट्यूब। तो आपने फ्यूजन ट्यूब के अंदर क्या लेना है, एक स्मॉल पीस ऑफ सोडियम मेटल लेना है। ठीक है, कट कर लेंगे आप, ये ऑलरेडी लैब्स के अंदर किरोसिन के अंदर डिप हुआ मिलता है। ठीक है, क्यों क्यों किरोसिन के अंदर, Na जो होता है वो किरोसिन के अंदर आपको मिल जाएगा। किरोसिन के अंदर इसलिए मिलता है क्योंकि ये वाटर के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेता है, इसलिए इसको किरोसिन में रखते हैं। अगर नॉर्मली रखेंगे तो वो मॉइस्चर के कंटेक्ट में आ जाएगा और रिएक्शन काफ़ी ख़तरनाक हो सकती है। तो आपने इसके अंदर सोडियम मेटल लेना और इसको आपने किसी स्पैचुला की हेल्प से, किसी हैंडल की हेल्प से इसको यहाँ से ऐसे पकड़ लेना है। ठीक है, तो आपने ये लिया, आपने इसको हीट करना है। मैंने यहाँ से बर्नर से इसको हीट किया। जैसे आप हीट करोगे, हीट करने के बाद जो सोडियम है वो सिल्वरिश कलर का हो जाएगा। ठीक है, वो थोड़ा सा चमकने लगेगा, शाइन करने लगेगा। ठीक है, जैसे ही वो शाइन करेगा उस पॉइंट पर आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड थोड़ा सा डालना है, लाइक दिस। ये अगर है बीच में, और ये सोडियम मेटल है, यहाँ पर मान लो ऑरेंज कलर का मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ऑर्गेनिक कंपाउंड डाल दिया। तो जैसे ये मैंने, ये क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड डाल दिया। नीचे से हमने क्या किया, इसको लो हीट कर दिया। जैसे आप इसको हीट कर रहे हो, हीट करने के बाद कुछ ही देर के बाद क्या होगा, ये जो है हमारे पास, ये बेसिकली सोडियम मेटल रेड कलर का हो जाएगा। ठीक है, इसके आस पास में जो भी है ये सारा मटेरियल इसके पास लग जाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ये रेड हॉट हो जाएगा। सोडियम बिकम रेड हॉट। तो ये रेड हॉट हो जाएगा। जैसे ही वो रेड हॉट होगा तो आपको क्या करना है, आपको बेसिकली एक चाइना डिश लेनी है। चाइना डिश, चाइना डिश के अंदर आपको यहाँ तक पानी भरना है।
ठीक है, यहाँ तक आपको क्या लेना है, डिस्टिल्ड वाटर। जैसे आपने डिस्टिल्ड वाटर लिया, आपने ये यहाँ पर रेड हॉट हो गई है, आपने बर्नर से हटा के इसको आपने इसके अंदर डालना है। जैसे ही आप इसके अंदर डालोगे ये अपने आप ही टूट जाएगी। ठीक है, टूट जाएगी और जो रेड हॉट है वो भी यहाँ पर पड़ा हुआ है। और आपने क्या करना है, एक वायर गोज़ की हेल्प से इसको जल्दी से कवर कर देना है, ताकि कई बार होता है कि सोडियम मेटल वाटर के कांटेक्ट में आ जाता है इस यहाँ पर, तो वो रिएक्शन कर देता है। तो इसलिए आपको जल्दी से करना है। ठीक है, एंड देन आपको क्या करना है, इसी चाइना डिश को जिसके अंदर मटेरियल सारा पड़ा हुआ है, ये कुछ मटेरियल पड़ा हुआ है। ठीक है, मैं आपको ये दिखा देती हूँ, ये कुछ कुछ मटेरियल है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, वायर गोज़ यहाँ लगा के एक ट्राइपॉड स्टैंड की हेल्प से यहाँ पर इसको एडजस्ट करना है और नीचे से किसी बर्नर की हेल्प से आपको फिर से फ्लेम देनी है। जैसे आप फ्लेम दोगे, इसका वाटर जो कंटेंट है बेसिकली वो 1/3 हो जाए। ठीक है, टिल वाटर कंटेंट 1/3। जैसे ही 1/3 हो जाएगा तो आपको पता है यहाँ तक आ चुका है ये सारी क्वांटिटी, ये सारी क्वांटिटी आ गई है। अब आप क्या करोगे, आपने एक फ़नल ली जिसके अंदर आपने फ़िल्टर पेपर, ये फ़िल्टर पेपर लगाया है एंड ये है हमारे पास फ़नल। तो आपने क्या किया, इसके अंदर इसको ट्रांसफ़र किया और नीचे हमने फ़िल्ट्रेट हमें मिल गया, फ़िल्ट्रेट मिला। यही हमारे पास क्या है, एल, ये ऊपर से आया, ये एल है हमारे पास। और यहाँ पर ये अनवांटेड सब्सटेंस जो है वो ऊपर रह जाएगा, जो एल है ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो हमारे पास आ जाएगा। तो अभी आप दोबारा से देख लीजिए, आपने सिंपली क्या किया, फ्यूजन ट्यूब के अंदर सोडियम मेटल को लेके अच्छे से हीट किया, जिससे सिल्वरिश कलर का हो गया, शाइन करने। जैसे ही शाइन करेगा उसके अंदर आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड डालना है, हीट करते रहना है। जैसे ही वो रेड हॉट होगा आपने उसको चाइना डिश के अंदर ट्रांसफ़र करना है और ऊपर वायर गोज़ रखना है। ये एकदम से टूट जाएगी, चिंगारी बंद हो जाएगी उसी टाइम। तब आपने इसको बर्नर पे फिक्स करना है और जैसे ही वाटर का कंटेंट 1/3 हो जाएगा देन आपने इसको फ़िल्टर करना है। जो फ़िल्टर करके आपको नीचे मिलेगा वही ही एल ही होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एल था। तो एल के लिए अब हम करते हैं टेस्ट फॉर नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले हमने एल में सोडियम मेटल का यूज़ किया था और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था उसके अंदर कार्बन और नाइट्रोजन तो होगा। ठीक है, क्योंकि हम नाइट्रोजन का अगर टेस्ट कर रहे हैं तो हम मान के चल रहे हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन है और ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन का तो मस्ट है। तो ये क्या करते हैं, फ्यूजन ट्यूब के अंदर फ्यूजन होती है और NaCN बन गया जो कि एल था। एल के अंदर क्या है, NaCN। तो NaCN की हमने सबसे पहले रिएक्शन किसके साथ करवानी है, FeSO4 के साथ और H2SO4 की प्रेजेंस में। तो जैसे ये रिएक्शन होगी FeCN2 प्लस Na2SO4 बनेगा और फिर से इसी के अंदर FeCN2 जो है वो 4 मोल्स ऑफ NaCN के साथ रिएक्ट करेगा, मतलब इन बिटवीन ये रिएक्शन हो ही जा रही है और हमें क्या मिल जाएगा, Na4FeCN6। तो ये हमारे पास बन के आ जाएगा जो है सोडियम फेरोसाइनाइड। ठीक है, तो इन बिटवीन अभी क्या होगा कि सोडियम फेरोसाइनाइड जो है इसके अंदर Fe2+ के जो आयंस हैं वो आयनाइज होकर Fe2+ के जो आयंस हैं आयनाइज हो जाएंगे। ठीक है, Fe3+ में। जैसे कि Fe3+ वाले क्या करेंगे, Na4FeCN सोडियम फेरोसाइनाइड के साथ ये रिएक्शन हुई। जैसे ही रिएक्शन होएगी प्रशियन ब्लू कलर शो होगा, Fe4FeCN6 प्लस 12 Na पॉजिटिव आयन। तो ये हमारे पास जो है ये प्रशियन ब्लू कलर, अगर तो प्रशियन ब्लू कलर शो हो रहा है, ये क्या है, फेरोसाइनाइड। ठीक है, ये इसका IUPAC नेम है और ये प्रशियन ब्लू कलर ये शो, अगर तो ये प्रशियन ब्लू कलर शो हो जाता है दैट मीन्स नाइट्रोजन उसमें
है। ठीक है, और सेम इसके अंदर भी ये लिमिटेशन आ सकती है कि मे बी उसके अंदर सल्फ़र भी हो सकता है, कि कार्बन नाइट्रोजन के साथ साथ उसमें सल्फ़र भी आ जाए, तब क्या होगा? तब इफ़ सल्फ़र प्रेजेंट, अगर उस केस में सल्फ़र भी प्रेजेंट है तो आपको क्या करना है, सोडियम सल्फ़र, और उस केस में आपका एल के अंदर सल्फ़र भी ऐड हो जाएगा, NaSCN, ये एल बन जाएगा। ठीक है, तो इस केस में Fe3+ जब जुड़ेगा NaSCN, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, FeSCN थ्राइस प्लस 3Na पॉजिटिव। तो इस केस के अंदर जो हमारे पास फेरिक थायोसाइन थायरो फेरिक थायो साइनाइड बनता है, ये जो होता है ये ब्लड रेड कलर का होता है। तो दोनों ही केस में अगर तो प्रशियन ब्लू कलर आता है रिएक्शन के दौरान, तो आपने समझ जाना है कि नाइट्रोजन कन्फर्म है। ठीक है, नाइट्रोजन उसमें है। लेकिन अगर ब्लड रेड कलर आ जाता तो आप समझ जाइए कि सल्फ़र उसके अंदर है। ठीक है, तो ये कुछ रिएक्शंस है। इसके बाद कंफर्मेटरी टेस्ट भी होते हैं, बट ये प्राइमरी टेस्ट है जो हमें पता ही होने चाहिए। ठीक है, तो आज हमने क्या किए, हमने आज कार्बन के बारे में बात की, हाइड्रोजन के बारे में बात की, नाइट्रोजन के बारे में बात की। तो फर्दर नेक्स्ट क्लास में हम सल्फ़र, फॉस्फोरस और हेलोजेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।